Hi dear students, this is Rupa Gua signing in with chapter 7, that is coordinate geometry, and we are doing the concept of this chapter. This chapter is contributing 4 to 6 marks in your final board examination, and this chapter has got very limited concept, that is formula is 2 से 3 ही है, so very easy to grasp, and this 4 to 6 marks are quite easy to catch up with. So let's get started with the first concept, that is distance formula. Now, if 2 points are given to us, that is one point is P and the other is Q, P having coordinates x1, y1 and Q having coordinates x2, y2. Now, if we need to find the distance between PQ, then it will be root over x2 minus x1 square plus y2 minus y1 ka square. So this is how we find the distance between 2 points. Now if one of the point is origin, that is Q is 0, 0 and P is x comma y. So the distance will be root over x square plus y square because one of them will be 0 हो जाएगा. ठीक है. So this way आप x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 में कोई फर्क नहीं होगा. रीजन इज स्क्वायर कर रहे हैं. ठीक है. सो इट डज नॉट मेक्स मच डिफरेंस वेदर यू आर राइटिंग x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2. ओके. सो वेरी सिंपल फॉर्मूला. Let's see one of the example based on this formula. Now it says that this question says that the distance between the point 0 comma 2 root 5 and 2 root 5 comma 0 is 4 options are there with us. This is a 1 marker question from year 2023. So simple implementation of the formula which you have just learned. Distance ले लिया हमने, एक point को हमने P ले लिया जिसके coordinates 0 comma 2 root 5 है, and the other one we have taken at Q and the coordinates are 2 root 5 comma 0. So x2 minus x1 का square और y2 minus y1 का square कर देंगे. So यूजुअली हम पहले वाले को x1 लेते हैं, दूसरे वाले को मतलब p को हम x1 y1, p के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेंगे और q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लेंगे और सिंपली विल पुट द वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट 2 रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर. सो 2 रूट 5 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, 2 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 5 का 5, सो 4 इंटू 5 20 आ गया. 20 प्लस 20 40, रूट 40 को हम यदि फैक्टराइज करेंगे सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, सो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट 10 अंदर रह जाएगा. सो द फाइनल आंसर विल बी 2 रूट 10 यूनिट्स. So 1 marks, nailed it, right? So moving on to the next question, that is like I have taken one more example from the same thing. So we need to find the distance of the points of the point minus 6 comma 8 from the origin. So origin wala root over x square plus y square. This is a 1 marker question from 2023. So simple, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 6 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे एंड फिर 8 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके रूट कर देंगे. सो 36 प्लस 64 दैट इज 100 आ जाएगा और इसका रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. नाउ मूविंग ऑन टू दी वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स सी क्या दे रखा है. Show that the points, 3 points are given as you can see in the figure itself. I have drawn it for your comfort. So 3 points जो है we have to show that these are the vertices of an equilateral triangle. एक को A मान लिया, दूसरे को B, तीसरे को C, and this is the 2 marker question from 2023. So equilateral triangle में आपको क्या करना है students? Only you have to see that AB, BC और AC तीनों के डिस्टेंस निकाल लीजिए. तीनों यदि बराबर है तो आप क्या बोलोगे? सो यू विल से दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो तीनों पॉइंट्स को नाम दे दीजिए. एक को मैंने ए दे दिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी. फिर विल स्टार्ट विथ फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ ईच वन ऑफ देम. सो सबसे पहले ए बी का निकाला
सो बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है. सो 3 + 3 और 3 अगेन +3, सो 6, दोनों 6 का स्क्वायर कर दिया 36. अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ आपको, जब दोनों सेम नंबर आ रहे हैं और उसका स्क्वायर करके आपको ऐड करना और उसका रूट निकालना है. सो अ ट्रिक इज दैट दोनों सेम नंबर आ रहे हैं तो सीधा आप लिख सकते हो 6√2. ये आप ट्राई करके भी देख सकते हो सॉल्व करके. फिर क्या किया, BC के कोऑर्डिनेट्स निकाले. अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है. कैसे आ सकता है, क्या किया, -3√3 -3 जब दोनों नेगेटिव होते हैं और उसका स्क्वायर करना होता है. सो द बेस्ट पॉसिबल मेथड या सबसे इजीएस्ट चीज़ क्या होती है, उसमें नेगेटिव साइन को हटा के, दोनों यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए. देखिए मैंने करा ये 3√3 + 3 का स्क्वायर कर दिया और दूसरे में क्या था 3√3 - 3 का स्क्वायर. अब ये a + b होल, क्योंकि आप इसको ऐड तो कर नहीं सकते हैं, सो आपको एक में a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरे में a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने. सो पहले वाले में क्या आया, स्क्वायर किया तो 27 + 9 + 18√3 आया और दूसरे वाले को स्क्वायर किया तो 27 + 9 - 18√3. सो 18√3 कैंसिल हो गया. 36 + 36 72, 6√2 आ गया. सिमिलरली थर्ड वाले को भी कर डाला, दैट इज AC का भी निकाल लिया सिमिलरली एग्जैक्टली द सेम वे और इसका आंसर भी 6√2 आया. सिंस ऑल द साइड्स इक्वल आ गए, हेंस वी कैन से दैट triangle ABC is an equilateral triangle. So nailed our 2 marks with this question. Now moving on to the next concept, that is section formula. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यदि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और बीच में एक कहीं पॉइंट है एंड दैट पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो k:1 एंड दैट इज अ लाइन सेगमेंट AB दे रखा है एंड P इज लाइंग बिटवीन देम एंड इट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो k:1 की जगह हमने क्या ले लिया यहाँ पे m1:m2. तो मुझे यदि P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, m1 को B से, B के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को x1, मतलब m1 इंटू x2 होगा प्लस m2 इंटू x1 ऑपोजिट, हाँ, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. और y कोऑर्डिनेट के लिए y वाला पार्ट लेंगे, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. अच्छा, यदि ये मिड पॉइंट हो गया तो मतलब A एंड B का मिड पॉइंट हो गया P, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, m1 और m2 का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1. तो m1 और m2 हट गया तो इक्वेशन क्या बन गई, कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए P के, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ PQ विल बी x1 + x2/2, y1 + y2/2. वेरी सिंपल. सो नाउ लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इस टाइप के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जब भी आते हैं, ट्राई टू मेक अ फिगर. ये आपके कन्वीनियंस के लिए होगा, एग्जामिनर आपको इस पे मार्क्स नहीं देगा, बट व्हेन यू ड्रॉ फिगर थिंग्स बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, मतलब आपको समझ में आने लगती है चीज़ें. ठीक है, सो इसमें क्या दे रखा है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B in the ratio 5:2. For coordinates of P are there, 4 options are there with us. This is a 1 marker question from 2024. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा एक फिगर बना लीजिएगा. ठीक है, सो A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखा है और P का रेशियो दे रखा है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने. सिंपली हमें सेक्शन फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देना है. सो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से. ठीक है, और हमारा P के कोऑर्डिनेट्स के ये पार्ट P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है. तो हमारा x वाला पार्ट मैंने बताया और y के लिए 5 को 2 से और 2 को -5 से और डिवाइडेड बाई ऑब्वियसली 5 + 2 हो जाएगा. तो ये वाला फॉर्मूला आपको इम्प्लीमेंट करना है एंड हाउ, दैट इज़ हाउ यू विल गेट द आंसर. तो फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 13/7, 0. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. So moving on to the next question with the same concept, find the
ratio in which the point, one point is there which is 8 by 5 comma y divides the line segment joining the point 1 comma 2 and 2 comma 3. Also find the value of y. इसका फिगर मैंने फटाफट बना लिया. दिस इज द 3 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम 2024. तो क्या है, a एंड b एक लाइन सेगमेंट है, p इज लाइंग समवेयर बिटवीन देम एंड वो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका रेशियो हमें निकालना है. तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी भी आपको कोई रेशियो निकालने को बोले, सो इंस्टेड ऑफ m/n कोशिश करिएगा k/1 यूज़ करने का. इससे क्वेश्चन थोड़ा सिंपलर और ईजियर हो जाता है. ठीक है. सो क्या किया मैंने, मैंने क्या एज्यूम कर दिया कि p ने ab को डिवाइड किया है इन द रेशियो k/1 और फिर वी हैव यूज्ड सेक्शन फॉर्मूला हियर. So let's see what I have written here. Let the point P divide the line segment joining the points A and B in the ratio k/1. Now k/1 से हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले. क्या किया, k को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से और डिवाइडेड बाय k+1 कर दिया. और y कोऑर्डिनेट के लिए k को 3 से और 1 को 2 से डिवाइडेड बाय k+1. नाउ हमें ऑलरेडी पता है कि p के कोऑर्डिनेट्स 8 by 5 कॉमा y था, तो इक्वेट कर दिया. सो क्या आया स्टूडेंट्स, 8 by 5 विल बी इक्वल्स टू 2k+1 डिवाइडेड बाय k+1. इससे मैंने k की वैल्यू निकाल ली. राइट, सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 8 इंटू k+1 विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 2k+1. सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू क्या आई, 3/2. सो जब भी ऐसा आए तो आप रेशियो क्या बोलोगे, k/1 था, सो 3/2 हो गया. अब क्वेश्चन में y भी निकालने को बोला है. y की वैल्यू आप इससे इक्वेट कर दो, किससे, y वाले कोऑर्डिनेट से. सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी 3k+2 डिवाइडेड बाई k+1. और k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3/2 है. सो सिंपली आपको k की जगह 3/2 पुट करना है और इसको सॉल्व करना है. न्यूमरेटर का एलसीएम निकालिए, डिनोमिनेटर तो एज इट इज उसका भी एलसीएम निकाला. तो क्या आया, 13/2 डिवाइडेड बाई 5/2, 2 कैंसिल हो गया. सो y की वैल्यू आ गई 13/5. So that way we have solved this question as well. Now another example which I have taken, let's see what this question says. In what ratio is the line segment joining the point 3 comma -5 and -1 comma 6 divided by the line y equals to x? तो this is a beautiful question in which a और b, मैंने a पॉइंट को ले लिया 3 comma -5, b को ले लिया -1 comma 6, and there is a line which is dividing this ab को. किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो मुझे निकालना है. दिस इज द 2 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम 2024. सो क्या किया, सबसे पहली चीज़ जो आपको इस क्वेश्चन में करना है, एक फिगर बना दिया. सो एक ना रफ आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है. सो क्या किया, सबसे पहले लेट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो k/1 कर दिया. ठीक है. और फिर p के कोऑर्डिनेट्स निकाले सेक्शन फार्मूला की हेल्प से. तो p के कोऑर्डिनेट्स फटाफट निकाल लेते हैं. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएगा, k को -1 से करेंगे और 1 को 3 से डिवाइडेड बाई k+1. और y कोऑर्डिनेट के लिए k को 6 से और 1 को -5 से divided by k+1. So I landed with -k+3 divided by k+1 and 6k - 5 divided by k+1. Now this point P lies on the line y equals to x. So x and y का वैल्यू, जो x and y के हमारे कोऑर्डिनेट्स, P की जो कोऑर्डिनेट्स आई है वो y की जगह y का वैल्यू डाल दीजिए और x की जगह x कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू डाल दीजिए. So what I got here, 6k - 5 divided by k+1 will be equals to -k+3 divided by k+1. So k+1 दोनों तरफ है, उसको काट दीजिए. So I'll be left with 6k - 5 equals to -k+3. Further solving it, I got k equals to 8/7. So ratio will be 8:7. So P is dividing AB in the ratio 8:7. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल. और आप देख सकते हैं कि ये 4 to 6 मार्क्स इज़ वेरी इजीली
गॉट, राइट, क्योंकि बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है, काफ़ी कम फॉर्मूलेज है और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलेज है. So I hope this video is very beneficial to you. Please share and subscribe. That is all for students. Bye bye students. See you in my next video with important questions of this chapter.